back to the Bhagavad Gita book study discussion. Rather, we are not going page by page. I'm just trying to share few insights from Bhagavad Gita according to the understanding by various authors, plus understanding from the teaching of Grandmaster Chandra. So till last to last week, हमने 4 chapter we have discussed. Today we are on the 5th chapter. The chapter name is Karma Sannyasa Yoga. Okay, इसके पहले क्या हुआ? Okay, let's do a short prayer before we go into further. Please open your palms like this and say to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to Lord Mahaguruji Maiden, all the great ones, all the holy gurus, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers. To my teacher, Grandmaster Chowapatsu, you can take your individual teacher's name if you wish to. Thank you for your blessings, guidance, help, and protection during the session and throughout. Thank you. Okay, so coming back, अब तक हमने जो पढ़ा, we have seen अर्जुन युद्ध क्षेत्र में डुअलिटी, द्वंद्व के स्टेज में होते हैं कि क्या करें क्या नहीं, और ये अर्जुन सिंबलाइजेज आवर माइंड, और हमारा माइंड हमेशा ऐसा ही रहता है, इधर दिस वे और दैट, इट्स लाइक अ पेंडुलम. मन को बीच में ठहरना नहीं आता, और मन इसीलिए लाइफ में भी आप देखिएगा, एवरीथिंग हैज अ ऑपोजिट, राइट? देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज सैडनेस. तो जब हैप्पीनेस आया है, याद रखिएगा सैडनेस भी आता ही होगा. इट्स लाइक अ सेम कॉइन के दो sides. Okay, but there are certain state of mind, state of your being which has no opposites, like आनंद. Okay, आनंद का कोई opposite शब्द नहीं. So जैसे गौतम बुद्ध का भी टीचिंग है, जैसे 4 noble truth. I hope you remember. First is dukkha happens, there is suffering in life. Second is suffering has a reason, there is karana for dukkha. Third is karan can be removed, the cause can be removed. And fourth stage is there is a state where there is no misery. So he doesn't say there is bliss or there is something, because whenever we say something, this was the understanding of Buddha, our mind tries to conceptualize it, imagine it. So हम इसको भी एक form बना लेते और हम उस form के साथ attach हो जाते. This is what is ahankara according to Krishna. Aham akara. Akara means form. Aham means self. When the self gets attached with certain form, be it a physical body, be it your emotions, even the thought, because thought को भी हम thought form बोलते हैं. So whenever we get attached with these things, हम identify होते हैं और हम खुद को वही thought या वही body समझने लगते हैं. तब विकार आता है. तब अगर मैं खुद को body समझूं तो फिर fear आएगा death का. फिर body के साथ साथ जो गुण है, लाइक इन द सांख्य योग कृष्ण बोलते हैं कि 24 तत्व है और एक पुरुष तत्व है, 24 प्रकृति के तत्व है, उससे इंसान बनता है. और इस 24 तत्व के 3 गुण हैं, सत्व, रजस एंड तमस. और इंसान इन तीनों गुण के हिसाब से बिहेव करता है, एक्ट करता है. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? सो नेचर गुण को ही, जो गुण सोल का है, उसको कृष्ण ने धर्म कहा. धर्म एक शब्द यहाँ पे कई बार अलग अलग जगह पे यूज हुआ है, डिफरेंट मीनिंग, विल टॉक अबाउट. ठीक है. सो अर्जुन को जब ये समझाया जाता है कि एक्चुअली यू आर अ सोल, कॉन्सेप्ट उनको समझ में आता है, बट ये इट इज नॉट हिज एक्सपीरियंस, इट इज नॉट हिज रियलाइजेशन. अगर आप में से किसी ने मास्टर चोआ का सोल वर्कशॉप अटेंड किया है, द फर्स्ट 4 वर्ड में मास्टर एक्सप्लेन करते हैं कि सोल रियलाइजेशन के ये जानना कि मैं सोल हूँ, इसके भी 4 स्टेप होते हैं. मैं आपको बता देता हूँ. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर. सो लेट्स 4 स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सोल. अभी जैसे हम वी रीड, वी स्टडी इन डिफरेंट बुक्स, सब जगह यही बोलते हैं कि
वी आर सोल्स। तो ये कॉन्सेप्ट हो, conceptually we understand कि we are soul, but there are many people who doesn't believe that we are soul. उनसे थोड़ा separate हम हो गए कि we start understanding कि okay we are soul, but that is just a conceptual understanding. वो first stage of soul realization. Second stage of soul realization क्या होता है, जब आप there are certain meditations जो करते ही आप खुद को माइंड से या बॉडी से डिटैच कर पाते हैं और रियलाइज कर पाते हैं कि हम सोल हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ड्यूरिंग मेडिटेशन और ड्यूरिंग सर्टेन प्रैक्टिसेस। सो ये जो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो समाधि अचीव होती है उसको कुछ कुछ योगिक स्कूल में सतोरी कहा गया। तो सतोरी इज सेकेंड स्टेज ऑफ सोल रियलाइजेशन। थर्ड स्टेज में द प्रैक्टिशनर, जैसे सोल मेडिटेशन में भी है, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग सोल मेडिटेशन, थर्ड स्टेज में ग्रेजुअली during the meditation the oneness with the soul becomes greater and you attain that yoga with your soul. That is what is then इस स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे प्रैक्टिशनर को योगी कहा and the person is full of bliss. इसीलिए उनके ऐसे लोगों के नाम के आगे या पीछे आनंद लगाया जाता है, जैसे परमहंस योगानंद, नित्यानंद, रामानंद। Okay, so Anand नाम के पीछे लगाया जाता है, that means the person has attained that bliss. That's a third stage of soul realization. और fourth stage में soul खुद को God के साथ realize oneness achieve करता है, that is known as God realization. जैसे कुछ योगीज अपने नाम के आगे भगवान लगाते हैं, that is a stage where they become one with the God. That is God realization. That's conceptually हम समझते हैं कि हम soul हैं, hopefully. Okay, so this is the first stage. Now second stage, third stage, fourth stage. That's a stage. और ये stage कितने incarnation लगेंगे, कितना साल लगेगा, कोई आपको clearly बोल नहीं सकता. Depends on your practice, आपके संस्कार, आपके कर्म और आपके क्या बोलते हैं नेचर ऑफ द सोल। कई बार सोल का नेचर, सपोजिंगली आपका इंट्रोवर्ट सोल है, तो लेकिन आप एक्सट्रोवर्ट काम में लगे हुए हैं, देन प्रोबेबली कन्फ्लिक्ट होगा। जैसे ब्राह्मण अगर क्षत्रिय बन जाए, दिस इज द प्रॉब्लम गोइंग टू हैपन। जैसे कि जैनों के सारे तीर्थंकर दे बॉर्न इन क्षत्रिय फैमिली, बट बाय नेचर, बाय सोल दे वर ब्राह्मण। इसीलिए वो, जैसे गौतम बुद्ध, बाय नेचर ही वाज ए ब्राह्मण, सोल का नेचर ब्राह्मण का था, बट ही गेव अप एंड but he born into a family of but he born into a family of kshatriya, but his nature was brahman. So वर्ण व्यवस्था की बात यहाँ पे आती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ क्वेश्चंस आए हैं कुछ फ्रेंड्स के, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सेकंड स्टेज हो गया सोल रियलाइजेशन के ऊपर कृष्ण बोलते हैं। अर्जुन को समझ में नहीं आता बिकॉज अर्जुन बाय नेचर, अर्जुन का सोल एक्सट्रोवर्ट है, बाय नेचर ही वाज ए क्षत्रिय, जो करने में बिलीव करता है, बिना करे कैसे हो सकता है। बिना करे जो हो सकता है वो मेडिटेशन, जिनको मेडिटेशन अच्छा लगता है they enjoy like non-doing, inaction, detachment. ये इन एनर्जी, यीन एंड यांग दोनों का कॉम्बिनेशन से लाइफ बनता है, या एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट इंसान का नेचर होता है मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से। चीजें सिमिलर है, समवेयर अदर दे आर कनेक्टेड, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रूथ। एंड सो ये जो एनर्जी है, द मेल एंड फीमेल, वही इसी से कॉन्सेप्ट आया है। सो मास्कुलिन इज आउटगोइंग, फेमिनिन इज इनवर्ड. It's not related to gender, rather it's related to the energy. So कर्म योगा समझाते हैं। कर्म योगा में हमने 4 स्टेप्स समझे थे, फिर से मैं वापस रिपीट करता हूँ। 4 स्टेप क्या क्या थे? फर्स्ट स्टेप वाज कर्म ना करने से कर्म करना बेटर है। कृष्ण पहले तो ये बोलते हैं, नहीं कच्छिच्छनमपि जातु तिष्ठत् कर्म कार्य से अवश्य कर्म सर्व प्रकृति। प्रकृति के नेचर के द्वारा प्रेरित होके आपको कर्म करना ही होगा, आप कर्म से भाग नहीं सकते। आपका भागना भी एक कर्म है, कुछ नहीं करना भी एक कर्म है। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, इवन इफ यू आर साइलेंट यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग। सो इनएक्शन उसको समझ में नहीं आता,
आपको लगता है कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना करे कैसे हो सकता है। आप उसको बोलो आंख बंद करके मेडिटेट करो, बोलेगा ये क्या कर रहा है, इससे किसका क्या भला होने वाला है, लोग भूखे मर रहे हैं, बाहर दुनिया सफर कर रही है, चलो हम लोग कुछ करते हैं। ये होता है एक एक्सट्रोवर्ट या फिर यांग प्रधान या फिर कर्म योगी या फिर क्षत्रिय का लक्षण। ये सारे चीज आप कोरिलेट कर सकते हैं। बेसिकली वी आर कनेक्टिंग विथ कल्चर, सॉरी, जो हमारा वर्ण व्यवस्था था पुराना, उसके साथ। ऐसे लोग आज भी हैं। एंड हमारी अंडरस्टैंडिंग, वो जो शूद्र नीचे ब्राह्मण ऊपर, ये अंडरस्टैंडिंग में हमारी मिस्टेक है। ऐसा कुछ नहीं था। सिंपली पीपल आर डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ देयर गुण एंड कर्म। तो वहां पे बोलते हैं चातुर्वर्ण मया सृजम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के हिसाब से उस पे हम आते हैं। ठीक है, कर्म ना करने से बेटर कर्म करना है, क्योंकि कर्म ना करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ये कृष्ण कहते हैं। इसीलिए पहला स्टेप हमने क्या कहा था, कर्म ना करने से कर्म करना बेटर है, तो कर्म करें। दूसरा स्टेप हमने क्या कहा था कि कर्म करें लेकिन फल की आशा को त्याग दें। कर्म निवाधिकार अस्ति मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु ते संगोष्ठ कर। सारे चीजों को अगर आप कोरिलेट करेंगे, ये 4 स्टेप आपको और क्लैरिटी से आए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम कर्म करें लेकिन फल की इच्छा को त्याग दें। क्या, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपने एप्पल प्लांट किया, एप्पल का फ्रूट आया, क्या आप फ्रूट को फेंक देंगे? नहीं, फ्रूट को आप एंजॉय करें, लेकिन फ्रूट के साथ अटैच नहीं होंगे। आज इसमें एक चीज समझना पड़ेगा, 5वां चैप्टर में कृष्ण बहुत बार इस चीज को बोलते हैं। कौन सा सूत्र है मैं आपको बताता हूँ। सम्यक दृष्टि, ओके, सम्यक दृष्टि टॉक्स इन द 5th सूत्र। ओके, सो कर्म और फल, दो चीज देखिए। कर्म मीन्स एक्शन, एक्शन अभी है और उसका रिजल्ट कब है? फ्यूचर में है। तो जब हम फ्यूचर में फोकस करेंगे तो हम प्रेजेंट में नहीं रह सकते। माइंड का एक नेचर है, आप एक ही जगह एक ही टाइम पे दो काम नहीं कर सकते। ओके, सो either you can be at the present moment or you can be at the future or you can be at the past. अगर आप पास्ट में अटके पड़े हैं तो आपको पास्ट कर्म का टेक केयर करना पड़ेगा। समवेयर देयर इज समथिंग हैपन इन योर लाइफ व्हिच यू आर अनेबल टू लेट गो। तो उस पास्ट को कैसे लेट गो करना है, उसके ऊपर भी विल टॉक अबाउट इट। दैट इज नॉट फ्रॉम भगवत गीता बट दैट इज फ्रॉम द टीचिंग ऑफ मास्टर चुआ, जो हम लॉ ऑफ कर्म में समझाते हैं। दूसरा है, अगर आप फ्यूचर में जी रहे हैं तो फ्यूचर में जीने से आपको एंजाइटी, फियर और डर आएगा ही आएगा, बिकॉज फ्यूचर इज नेवर प्रेडिक्टेबल। और फल का कहाँ होता है? हमेशा फ्यूचर में होता है। कर्म आज है, फल कल है। आज जो भी हम कर्म करते हैं हम सोचते हैं कि कल हमको ये फल मिलेगा, इसलिए हम करते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ लैग टाइम। लैग टाइम क्या है? विल कम इनटू दैट, इसको नोट करके रखिए। ठीक है, तो कर्म आज है, फल कल है। लेकिन जब फल आता है तब भी आपको जो एक्सपेक्टेशन था कि ये होने से मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। सपोजिंगली आपने सोचा कि मैं एक मर्सिडीज खरीदूं एंड यू आर ड्रीमिंग अबाउट इट, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो कर्म आज है, फल आपका मर्सिडीज है। लेकिन आप फल के साथ अगर इतना अटैच होते हैं, आप खुद को इतना एंथुसियास्टिक फील कराते हैं व्हेन यू विल हैव दैट कार, एक्चुअली जब आपके पास वो कार होता है, आप वो हैप्पीनेस ज्यादा दिन तक पकड़ के नहीं रख सकते। कुछ दिनों बाद यू विल गेट बोर। ये मन का नेचर है, इस नेचर को समझिए। पेन हो या प्लेजर हो, ये माइंड हमेशा एक तरफ से दूसरे तरफ पेंडुलम की तरह डोलता रहता है। और इस दोनों को एक स्टेज, जैसे गौतम बुद्ध बोले ना, चौथा चरण, जहाँ पे आपको मिजरी नहीं होता है, तो मिजरी नहीं होने का उपाय है मध्यम निकाय, द मिडिल पाथ। जैसे कृष्ण एक जगह बोलते हैं राग और द्वेष। राग मीन्स अटैचमेंट, द्वेष मीन्स एवर्शन। सो हम कभी किसी एक चीज के पीछे भागते हैं या उस चीज से दूर भागते हैं, बीच में नहीं ठहर सकते। तो बीच में ठहरते ही माइंड को हम ट्रांसेंड करते हैं एंड वी रीच, वी बिकम अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ अस, दैट इज व्हाट वी आर द सोल।
Okay, so this is the way we can, one of the way, meditation is one of the way where if you have done 2.5 meditation, मास्टर चुआ जो ओम चांट कराने के बाद 2 ओम के बीच में साइलेंस, जो साइलेंस में लेके जाते, so whenever we go into that silence, we transcend the mind, we go between these thoughts, and that is the 4th state of our consciousness, which is very near to the soul, not exactly the soul. 4 stage of consciousness हम आगे बात करेंगे जब कृष्ण बोलते हैं मंत्रों में मैं ओम हूँ, तो ओम का क्या मीनिंग है और ये 4 कॉन्शियसनेस क्या है, हम आगे सुनें. नाउ कमिंग बैक, कर्म योगा समझाते हैं. फिर कर्म योगा के साथ साथ कृष्ण क्या बताते हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योगा, 4th चैप्टर जो हमने पढ़ा था, ज्ञान कर्म संन्यास योग. इसमें ज्ञान भी है, कर्म नॉलेज भी है, नोइंग भी है जो ब्राह्मण का तरीका है, और कर्म भी है जो क्षत्रिय का तरीका है, और दोनों को डिटैच करना है. नॉलेज को भी डिटैच करना है, एक्शन को भी डिटैच करना है. दैट इज व्हाट इज ज्ञान कर्म संन्यास योग, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. ओके, सो इसको आप कोरिलेट करिए कर्म के जो 4 स्टेप है उसके साथ. पहला हमने स्टेप क्या बोला था, कर्म ना करने से कर्म करना बेटर है. दूसरा स्टेप बोला था कर्म करिए फल की इच्छा को त्याग करके. तीसरा स्टेज बोला था फल की इच्छा को तो त्याग करना ही करना है, कर्तापन को भी त्याग करना है, नोइंग दैट यू आर नॉट अ डूअर. डूअरशिप इज एन इल्यूजन. कृष्ण बोलते हैं कि कर्तापन एक वहम है, तुमको लगता है तुम करते हो, एक्चुअली तुम नहीं, तुम हो ही नहीं. दिस इज द मीनिंग व्हेन ही सेज कि देयर इज द डूअरशिप इज एन इल्यूजन. ओके, जैसे आई शेयर्ड यू सम एग्जांपल्स, लाइक हम बोलते हैं मैं पैदा हुआ, क्या आप सच में पैदा हुए? आपको पैदा होने से पहले पूछा गया था? ओके, सो हम बोलते हैं मैं बड़ा हुआ, वाज इट योर कॉन्शियस डिसीजन? बड़ा होना आप चाहते तो छोटे रह सकते थे क्या? ऑप्शन नहीं था. सो दैट्स द नेचर हैपनिंग थ्रू अस, एंड वी से दैट आई एम डूइंग इट. दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज अ मिस आइडेंटिटी, जिससे सारे भ्रम पैदा होते हैं, जिससे सारे रोग पैदा होते हैं. राइट, सो डूअरशिप, द इल्यूजन ऑफ डूअरशिप. जो 3rd स्टेज ऑफ कर्म में क्या बोलते हैं, कर्तापन को आप त्याग करिए. जब आप कर्तापन को त्याग करते हैं, देन द पर्सन बिकम्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड. गॉड एक्ट्स थ्रू हिम, दैट इज व्हाट इज बीइंग इंस्ट्रूमेंट. और इसका सुंदर एग्जांपल है फ्लूट. जो कृष्ण जो प्ले करते हैं फ्लूट, बिल्कुल हॉलो है, अंदर से कुछ नहीं है. एंड हमको भी वैसा होना है. दैट्स अ सिंबल, वी नीड टू बी लाइक द फ्लूट in the hand of Krishna, and let the divine energy or the divinity or the soul flow through us. और जो बांसुरी के जो 9 होल्स है, आई थिंक कितने होल होते हैं, 7 होल्स, 7 to 9 10, कोई कोई बांसुरी में 10, कोई कोई में ये 9. Okay, so that's basically the chakras or the major chakras symbolizes. और कोई कोई टीचिंग में ये भी कहते हैं कि फ्लूट सिंबलाइजेस द सुषुम्ना नाड़ी. एनीवे, सो वी बिकम द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज व्हाट इज परफेक्ट कर्म योगा. तो कृष्ण बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्मणि, योग में स्थित हो. कर्म करते करते आप योग को उपलब्ध होइए. योग मीन्स वननेस. पर्पस देखिए, कृष्ण सब जगह एक ही चीज बोलते हैं, तुम्हारा पर्पस अपने सोल के साथ एक होना है. आप ज्ञान लेके होते हैं, कर्म करके होते हैं, कैसे होते हैं, डजंट मैटर. आर वी ऑन दिस? यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी इसके बाद हम 5th चैप्टर के बारे में 1-2 चित्र को लेके बात करें. सर, यस, आत्मा नमस्ते. आत्मा नमस्ते सर, अनु. आपने राम जी बोलना था, सॉरी. हाँ, सर बोलना आपने मना है. यू कैन सी राम. नो जी, नो भैया, नो सर. आदत लगाएंगे सर. मेडिटेशन के लिए आपने बोला ओके, मेडिटेशन के लिए आपने बोला कि जो मेडिटेशन को पसंद करने लगते हैं वो इंग में ज्यादा रहते हैं.
जैसे कि इन डूइंग। हाँ, बिकॉज सर मेडिटेशन इज गोइंग इनवर्ड, ओके, इनवर्ड, इट्स ओके। अ यीन एक्शन। हमें कहा जाता है कि मेडिटेशन भी करने के लिए, तो सर मेडिटेशन से भी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना जरूरी है क्या? हाँ, मेडिटेशन में भी आप मेडिटेशन को भी आपको डिटैच करना है। ध्यानम बंधन, ये अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र बोलते हैं कि एक समय पे आपको ध्यान को भी त्याग करना पड़ेगा, ध्यान भी एक बंधन बन जाता है, बट दैट इज अ लास्ट बॉन्डेज आई थिंक। उसके पहले भी ओके हमको बहुत कुछ डिटैच करना है, और उसके लिए मेडिटेशन हेल्प कर। ओके। इट्स लाइक अगर आपके पैर में कांटा गड़ा हो तो आप एक छोटा कांटा लेके बड़े कांटे को निकालते हैं। मैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि छोटे कांटे को आप फिर से रख देते हैं। यू हैव टू राइट थ्रो सर। दैट आल्सो। दैट इज कंप्लीट लेटिंग गो एंड अटेनिंग दैट निर्वाणा और नथिंगनेस स्टेट। दैट इज अ पर्पस ऑफ मेडिटेशन बेसिक। ये जो रास का जो सिंबल आता है, जहाँ पे आप देखेंगे 16,000 गोपियां हैं और हर गोपी के साथ कृष्ण है। So that symbolizes number of thoughts that we have. Or between every thought there is Krishna, means the nothingness or the soul, और आप उनको परमात्मा बोलिए, परब्रह्म बोलिए, this is ultimately source एक ही है. So different way of saying. Somebody will say Krishna is a Parabrahma, somebody will say Krishna is a Paramatma, somebody will say Krishna was an avatar, somebody, Arjun के दृष्टि में he was a friend, and शकुनी के दृष्टि में he was a cunning politician. So सबके दृष्टि में अलग अलग उनका एक रूप है। ओके, सर बेसिकली अगर हम लोग बहुत ज्यादा यंग में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा हाँ, डूइंग में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा डूइंग में, तो सर इन प्रैक्टिस कैसे doing करें? मतलब doing is yang energy, non doing is yin energy, going out is yang energy, going in is yin energy, extrovert is yang, introvert is yin. ओके, लेकिन दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। जहाँ आपको नींद चाहिए कि नहीं चाहिए, बट नींद के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन जब आपको भूख लगती है शरीर को, तो आपको बाहर कमाने भी जाना पड़ेगा। सो बोथ आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। ओके जैसे गाड़ी में ब्रेक भी है, एक्सेलरेटर भी है, लेकिन अगर हम खाली अंदर अंदर जाते हैं तो भी हम बैलेंस खो देते हैं। And that's why these yogis they lose balance in their life. इसलिए दोनों जरूरी है बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल, बहुत सुंदर एग्जांपल है, स्वास्थ्य, हेल्थ। ओके, हेल्थ का इंग्लिश डेफिनेशन आप देखे, कहते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज। सो ये डेफिनेशन ही नेगेटिव हो गया, डिजीज को लाना पड़ा हेल्थ डिफाइन करने। बट इफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब होता है जो स्वयं में स्थित हो। स्वयं में स्थित, यहाँ स्वयं क्या है? स्वयं मीन्स द सोल। सो व्हेन वी आर वन विद द सोल, दैट इज व्हाट इज द रियल हेल्थ। सो और नॉर्मल सेंस में डे टू डे लाइफ में हम हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य पाने के लिए क्या करते हैं? जो लेजी है, तामसिक है, उसको थोड़ा भगाते हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। और जो माइंड है, जो राजसिक है, एनी टाइम भागता रहता है, उसको थोड़ा रोकते हैं। दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन। सो दोनों, जो बॉडी लेजी को भगाते हैं, माइंड हमेशा भागता रहता है, उसको स्लो करते हैं, और दोनों का बैलेंस करके हम हेल्थ को अटेन करते हैं। इसी तरीके से तामस और रजस को बैलेंस करके सत्व को अचीव होता है। इसी तरह एवर्शन और अटैचमेंट को बैलेंस करके डिटैचमेंट अचीव होता है। दैट इज द मिडिल वे। दैट्स व्हाई कृष्ण यहाँ पे इस चैप्टर में बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट पे रहो। फल की आशा करके काम करोगे तो यू कैन नॉट बी एट द प्रेजेंट मोमेंट, योर एनर्जी इज नॉट फोकस्ड हियर। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? लाइक अगर आप मीनिंग समझते हैं, जाजेन, जैन जैन लोगों का जो मेडिटेशन प्रैक्टिस होता है उसका नाम होता है झाजेन। झाजेन का मतलब होता है जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। बट डूइंग नथिंग जिनका माइंड करने में बिलीव करता है, उनके लिए बहुत मुश्किल, उनसे नहीं हो पाता। वो बोलेंगे नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं तो कुछ करूंगा। उनको काम दिया जाता है, बोले चलिए सर्विस करिए, राइट? ओके, नाउ कमिंग इनटू वन मोर कॉन्सेप्ट जिस पे बहुत लोगों का सवाल आता है, दैट इज द कास्ट सिस्टम। कृष्ण एक जगह पे बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम मैंने बनाया।
बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट। और नॉर्मली हमारे माइंड में ऐसा एक कंडीशनिंग हो चुका है कि कास्ट सिस्टम मतलब गलत एक चीज, कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो कास्ट सिस्टम में ऊपर नीचे का जो कॉन्सेप्ट आया, ये बहुत नया है, ये पुराना नहीं है ज्यादा। एक दो आपको अपवाद स्टोरीज शायद मिलेंगे, लेकिन उसमें भी फर्दर क्लैरिटी की जरूरत है। जैसे ब्रिटिश सेंसस 1931 में जब जनगणना हुई थी, उस टाइम पे इंडिया में 4000 के करीब जाति का उन्होंने लिस्टिंग किया। और उन्होंने जब ये लिस्टिंग किया था, तब उन्होंने ये ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट आया। तो ब्राह्मण ऊपर, कोई जैसे माली है, मछुआरन है, उनको नीचे, मतलब ऐसा जो सेपरेशन है ऊपर नीचे वाला, एक कॉन्सेप्ट उसमें था पहली बार। उसके पहले कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं, बल्कि मनुस्मृति जिसका हवाला देते हैं जाति में विभाजन लाने के लिए लोग, मनुस्मृति में तो मनु महाराज कहते हैं जन्मनो जायते शूद्रः, बाय बर्थ एवरीवन शूद्र, बिकॉज वो क्या करेगा बड़ा हो के आपको नहीं पता, उसका फ्लावरिंग अभी हुआ ही नहीं, राइट। सो गुण और कर्म के हिसाब से हम वर्णों को डिवाइड किए हैं कृष्ण कहते हैं। इसमें दोनों चीज को समझिए, दोनों चीज को समझिए, गुण और कर्म। गुण होता है जो टैलेंट, वो सोल, या जो संस्कार, जो इंटेलिजेंस, वो सोल अपने पास्ट इंकारनेशन से, जिसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, उस लाइफ में जो करना होता है उसके लिए लेके गुण होता है। और कर्म होता है जब वो गुण मैनिफेस्ट होता है। जरूरी नहीं है कि हर सोल जो बनने के लिए आया था वो बनता हो, बल्कि उल्टा होता है। खाली शायद 0.001% सोल ही वो कर पाते हैं जो वो बनने के लिए आए, बाकियों का जिंदगी बेकार जाता है। और यही पीड़ा है इंसान की, कि हम वो नहीं बन पाते जो बनने के लिए आए। सो जो सोल खुद को मैनिफेस्ट करता है उसको कर्म का, एक वो सोल का क्वालिटी, दूसरा सोल का एक्सप्रेशन। ओके, सो क्वालिटी इज गुण, कर्म इज एक्सप्रेशन। सो ये चीज बाय बर्थ कैसे आ सकता है? बाय बर्थ तो नहीं आ सकता। ये चीज हर एक सोल जो क्या गुण लेके आएगा और लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करेगा, ये दो चीज पे निर्भर करता है। उसका पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है और इस लाइफ में उसका प्रारब्ध कर्म। सिंपल, प्रारब्ध कर्म का मतलब आपका पूरा जितने इनकारनेशन है उसका कर्म का एक मेमोरी रहता है आपका कॉजल बॉडी में। और उसमें से कुछ एक कर्म आपको इस लाइफ में वर्कआउट करने होते हैं, जो आप लेके आते हैं, कुछ लेसन आपको लर्न करने होते हैं। जैसे आपने पिछले जन्म में किसी से उधार लिया था, चुकाया नहीं, तो इस जन्म में आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये अकाउंट ऐसा चलता रहता है जन्मों जन्मों। दैट इज व्हाट इज कार्मिक बैंक अकाउंट, कार्मिक बैलेंस। सो दैट इज अबाउट पास्ट कर्म। प्रेजेंट में कैसे करना है, प्रेजेंट में क्या करना है वो कृष्ण कहते हैं। पास्ट के कर्म जो, अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका भी कई गुना आपको वापस मिलेगा, और कुछ गलत भी किया है तो भी कई गुना वापस आपको मिलेगा। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करें। सो कर्म, पास्ट कर्म विल कम बैक टू यू अकॉर्डिंग टू द डीड दैट वी हैव डन। इसको बोलते हैं एज यू शो यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। ये लॉ ऑफ कर्म का नियम। ठीक। सो एक हो गया पास्ट, उसको आप कैसे टेक केयर कर सकते हैं। अभी आज का प्रेजेंट अगर बहुत तकलीफ में है तो आप समझ लीजिए आपने पास्ट में कुछ गड़बड़ किया। एक स्टोरी में नॉर्मली बेसिक क्लास में बताता हूँ, आलू का स्टोरी। ओके, एक भाई साहब रोज ऑफिस जाते हैं, टिफिन खोलते हैं दोपहर के टाइम पे, और आलू की सब्जी देख के बोलते हैं यार फिर से आलू, कितना आलू खाऊं। फिर खाते हैं। नेक्स्ट डे फिर से टिफिन खोलते हैं, बोलते फिर से आलू, थक गया मैं आलू का। फिर टिफिन खाते हैं। फिर थर्ड डे डब्बा खोलते हैं, अरे यार फिर से आलू। तो बगल में कोई था, 3 दिन से उनकी गतिविधि देख रहा था। बोला भाई साहब आपको आलू पसंद नहीं है तो आप बीबी को बोलिए कुछ और बना देगी। तो ये भाई साहब बोले बीबी थोड़ी खाना बनाती है, आपकी तरह किस्मत वाला थोड़ी हूँ, तो जो खाना बनाता है उसको बोलिए।
तो वो तो पूछो ही मत, खाना तो मैं खुद बनाता हूँ, वो खाना खुद ही बनाता है। और सुबह अगर आलू की सब्जी बनाएगा दोपहर को तो आलू ही खाना पड़ेगा ना। तो आप जो किए हैं उसी का फल अगर आज है तो अच्छा बुरा दोनों। तो आज अगर आप अपने लाइफ को कंप्लेन कर रहे हैं तो ये लाइफ, अगर आप आलू पसंद नहीं है तो आलू किसने बनाया? आपने बनाया। तो आप बनाना, दूसरा कुछ बनाना शुरू करिए आज से, आपको जो पसंद है वो बनाना शुरू करिए। Something like that. So as you sow, you reap. So if you doesn't like the fruit, what you need to do? You can change the seed. आप कर्म को चेंज करिए, आपको जो चाहिए उसको प्लांट करिए। आपको लाइफ में लव चाहिए, आप लोगों को लव दीजिए। आपको लाइफ में पैसा चाहिए, आप लोगों को पैसा दीजिए। जो चाहिए वो देना शुरू करिए। ये लॉ ऑफ कर्म का नियम। सिंपल देखिए ना, लाइफ में आपको बिजनेस भी करते हैं, आपको पहले क्या आता है? हमेशा इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव। जो आप देंगे वही आपके पास कई गुना होके वापस आए। ये लॉ ऑफ कर्म, कर्म का नियम है। इट इज इन गिविंग दैट यू रिसीव। इफ यू गिव, इफ यू, सो इसका मतलब इसको उल्टा करके मास्टर बोलते हैं आपको जो चाहिए वो लोगों को दीजिए। ओके, सो हाउ कैन वी गिव? उस पे भी 3 लेवल पे होता है, मन वचन काया। माइंड, हम थॉट से भी देते हैं, हम थॉट क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, दैट इज अ गिविंग, गिविंग एट द मेंटल लेवल। लोगों को नॉलेज देते हैं, दैट इज अ गिविंग एट द मेंटल लेवल। लोगों के प्रति पेशेंस होना इज अ लव एट द मेंटल लेवल। ओके, जेनरोसिटी मीन्स मेंटल लेवल पे इंटेलिजेंस शेयर करना। ओके, सो शेयरिंग नॉलेज, शेयरिंग व्हाट यू नो, sharing, being patient with people, tolerant with people is a mental level giving in the positive side if you want to create good karma. लेकिन नेगेटिव साइड में क्या होता है? मेंटल क्रिटिसिज्म होता है। गाली, मेंटली हम लोगों को गाली देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों के प्रति जजमेंट बनाते हैं। सो दीज आर द नेगेटिव सीड्स दैट वी आर सोइंग एट द मेंटल। तो अगर आप नेगेटिव सीड्स सोएंगे तो आप, अगर आप किसी के बारे में किसी को क्रिटिसाइज करते रहेंगे मेंटली, तो आपको भी कोई क्रिटिसाइज करेगा। यस और नो? दैट्स द लॉ ऑफ कर्म। तो मास्टर उसको सिंपली बोलते हैं कि आपको लाइफ में जो चाहिए आप दूसरे को दीजिए। फिजिकल लेवल पे आपको, अगर आप किसी को खाना देते हैं, फूड देते हैं, तो आपके घर में कभी फूड का कमी नहीं होगा। आप किसी को पैसा देते हैं, सपोजिंगली आप किसी को 10 रुपए दीजिए, इट्स ऑलवेज 10 टाइम्स। ओके, आप 10 देंगे तो आपको 100 मिलेगा, 100 देंगे तो आपको 1000 मिलेगा। दिस इज अ लॉ ऑफ कर्म। इसको इसीलिए मास्टर बोलते हैं 10% अपना कमाई का हिस्सा आप डोनेट करिए, चैरिटी में दीजिए। और इसको क्रिश्चियनिटी में टाइडिंग कहते हैं। टाइडिंग मीन्स 10%। हिंदुइज्म में श्रीमद् भागवतम में इसको दशमांश कहा गया है, और इस्लाम में इसको जकात। तो ये कॉन्सेप्ट है। So it is in giving that we receive. That is the law of karma, right? So कहाँ पे थे हम लोग? लॉ ऑफ कर्मा पे थे, राइट? तो ये जो 4 चरण के लोग हमने बात किए थे, एक होता है शूद्र जो फिजिकल लेबर करता है नॉर्मली, उसके अंदर का वो फ्लावरिंग नहीं हो पाता है। दूसरा होता है वैश्य जो पैसे के पीछे, उसको पैसा किक देता है, मनी किक देता है। तो कृष्ण बोलते हैं वो भी गलत नहीं है, पैसा भी चाहिए, शूद्र भी गलत चाहिए, वो मैनुअल लेबर करने वाले लोग भी चाहिए, फिजिकल वर्क करने वाले भी लोग चाहिए, पैसा इकट्ठा करने वाले, फॉर्च्यून बिल्डअप करने वाले लोग भी, बिजनेसमैन भी चाहिए, नॉलेज को इनकलकेट करने वाले, बुक्स, मेडिटेशन, ये सब करने वाले लोग भी चाहिए, और प्रोटेक्टर, क्षत्रिय, ये लोग भी चाहिए। इन चारों का कॉम्बिनेशन से लाइफ चलता है। और अतीज में ये वो डिफरेंशिएशन नहीं होता था। अभी आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्या है कि मेगास्थनीस बोल के एक फॉरेनर आए थे जिन्होंने इंडिका बोल के, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का एक बुक है, उसमें मेंशन है कि उस समय 7 तरह की जातियां होती थी, और उसमें वो अपर लोअर का सिस्टम नहीं था। दे ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल, एंड उनका फंक्शन अलग अलग होता था, उनके गुण और कर्म अलग अलग होते थे। 7 टाइप्स। कुछ साल पहले, आई थिंक इफ आई हैव मेंशन दिस इन दिस सेशन, एक मूवी आई थी, इंग्लिश मूवी, उसका नाम है द डाइवर्जेंट। आप गूगल में सर्च करिएगा और यू कैन वॉच द मूवी, बहुत सुंदर मूवी है।
द डाइवर्जेंट में बेसिकली स्टोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि सूनर और लेटर यूएस के जो समाज सुधारक हैं, जो सोशलिस्ट है, उनको ये रियलाइज होता है कि समाज को, सोसाइटी को अगर अच्छे से चलाना हो, बिना कन्फ्लिक्ट के, बिना मार झगड़े के, तो वहां पे कास्ट सिस्टम को वापस लाना पड़े। नॉट बिकॉज कि कोई छोटा या बड़ा, बल्कि उनके टैलेंट के हिसाब से, उनकी रुझान के हिसाब से उनको डिवाइड करके उनको उसी हिसाब से नर्चरिंग किया जाए। इसी के ऊपर ये मूवी है। 5 तरह के क्वालिटी के लोग के बारे में उसमें डिस्कशन है, जिसमें इरुडाइट, दोज हु आर इंटेलिजेंसिया सेम एज ब्राह्मण इन भगवद गीता, as Krishna mentioned. So I recommend you should watch that movie. You'll understand the science behind वर्ण व्यवस्था। नॉर्मली हम वर्ण व्यवस्था बोलने से क्रिटिसिज्म आता है, बट दैट्स नॉट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। पुराने जमाने में आप देखेंगे पंचायत होती थी, आज भी होती है। पंचायत का मतलब मालूम है? पंचायत इज ऑल्सो बेसिकली दो 4 वर्ण, हर वर्ण का एक रिप्रेजेंटेटिव जाता था। ब्राह्मण का एक रिप्रेजेंटेटिव, क्षत्रिय का एक रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था, मीटिंग होती थी तो हर वर्ण का एक रिप्रेजेंटेटिव आता था। ब्राह्मण का एक, क्षत्रिय का एक, वैश्य का एक, शूद्र का एक। और 5वां कौन होता था? जो सन्यासी होते थे, जो जो गांव के बाहर जंगल में रहते थे, बट उस मीटिंग से उनका लाइफ भी प्रभावित होता, उनको भी उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया जाता। और 5 लोगों, दिस 5 रिप्रेजेंटेटिव मेक्स पंचायत। तो ऐसी व्यवस्था थी ये हमारे देश में, राइट? आप देखेंगे वाल्मीकि, इवन वेद व्यास की मदर वाज मछुआरन, मत्स्यगंधा उनका नाम था। बाद में शी वाज, उनको वरदान मिला इनसे बिकम सत्यवती। तो मछुआरे के बेटे थे, उस हिसाब से आज के डेट में शेड्यूल कास्ट में आते हैं। बट दैट्स नॉट अपर इन लॉ। उस समय कोई भी ऋषि बन जाता था अपने गुण और कर्म के हिसाब से। एक क्षत्रिय भी ऋषि बनते थे, जैसे विश्वामित्र हो गए, ओके। और एक ब्राह्मण कुल में जन्मे भी ब्राह्मण भी क्षत्रिय बन जाते थे, जैसे परशुराम हुए। अभी एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जो कुछ लोग हैं जो पावर के पीछे मोटिवेट होते हैं, दैट इज दोज आर क्षत्रियस। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन मोटिव क्या है कि अगर मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो मैं पावरफुल होगा। तो भले ही वो बाय प्रोफेशन वैश्य का कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली क्षत्रिय है। समझ रहे बात? जब कुछ लोग अगर पावर के रोल में है, मे बी दे आर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स समथिंग, और मे बी दे आर पॉलिटिशियंस, they are in certain powerful position, but उनका पर्पस बेसिकली टू अर्न मनी, then they're actually कर्म उनका क्षत्रिय का हुआ, बट गुण उनका वैश्य का हुआ। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तुम्हारा गुण और कर्म अगर दोनों एक हो तो तब तुम्हारा लाइफ ब्लूम होता है, तब तुम अपने निजत्व को, जो करने के लिए तुम आए हो, वो प्रकट होता है। इसी का मीनिंग हमने इकिगाई कहा था। इकिगाई वी स्टडीड नाइट, राइट? जो ओकिनावा के विलेज में, जहाँ पे लोग एवरेज 100 साल से ज्यादा जीते हैं, उनका सीक्रेट क्या है बोलने से देश से इकिगाई। तो इकिगाई का मतलब दैट इज अ पर्पस जहाँ आपका गुण और कर्म सेम हो। जैसे अर्जुन का गुण है क्षत्रिय का, लेकिन वो भाग रहा है युद्ध से, तो कर्म क्या कर रहा है? ब्राह्मण का। तो वो मिसमैच है। जहां मिसमैच होता है वहां लाइफ वेस्ट जाती है। जैसे कि इट्स लाइक नो a lotus trying to be a rose, तो वो रोज तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि उसका गुण नहीं है, और रोज बनने के चक्कर में अपना एनर्जी वेस्ट करेगा और कमल भी नहीं बन पाएगा। दैट इज द बिगेस्ट एक्सीडेंट हैपेंस टू द मैनकाइंड, दैट इज द बिगेस्ट लॉस दैट मैनकाइंड इज गोइंग थ्रू। अगर हम में से 10% लोग भी वो बन जाए जो हम बनने के लिए आए हैं, तो इस दुनिया को स्वर्ग बनते हुए कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, जो हमने अभी बात की थी, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मो रक्षति रक्षिता का मतलब क्या है, समझते हैं इसको। कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, सॉरी आई थिंक आई रिकॉर्डिंग चल रहा है।
कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं धर्मो रक्षति रक्षति, धर्म को आप रक्षा करो, आपको धर्म रक्षा करेगा। इसको बहुत कभी कभी गलत अंडरस्टैंडिंग में समझा गया कि धर्म मतलब, आर वी टॉकिंग अबाउट हिंदू, आर वी टॉकिंग अबाउट इस्लाम, और आर वी टॉकिंग अबाउट सो कॉल्ड रिलीजन? डेफिनेटली नॉट। यहाँ धर्म मतलब लॉ ऑफ कर्म की बात कर रहे हैं। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म मीन्स हियर बुद्ध इज सेइंग द ग्रेट लॉ, जिसके हिसाब से ये दुनिया चलती है। ओके, सो लॉ ऑफ कर्म की यहाँ पे बात करें। अगर आप लॉ ऑफ कर्म को मान के चलें तो आपको लॉ ऑफ कर्म बचाएगा। मतलब लॉ, अगर सिंपल चीज है, अगर आपने किसी को इंजुरी किया ही नहीं लाइफ में तो आपका कभी कोई इंजुरी कर नहीं सकता। जैसे मास्टर चुआ एक गोल्डन लोटस सूत्र में कहते हैं कि अगर आपका इंजुरी का कर्म नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव अ कर्म ऑफ इंजुरी, यू कैन वॉक थ्रू अ न्यूक्लियर वॉर एंड नथिंग विल हैपन टू यू। आप एक न्यूक्लियर वॉर से भी गुजर सकते हैं और आपको आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर आपने किसी को इंजूर नहीं किया है। अगर आपका इंजुरी का कर्म नहीं है तो आपको कोई इंजूर नहीं कर सकता। इसमें वो एक मूवी आता था सिंगलर्स लिस्ट, इफ यू हैव सीन दैट मूवी, उसमें एक सीन है। ओके, सिंगलर्स लिस्ट में क्या होता है, एक उनको शूट, नाजीज लोगों को पकड़ पकड़ के शूट करते रहते हैं, जर्मन के, सॉरी, दे वर किलिंग दिस पीपल। एंड शिंडलर बोल के एक अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, ही हैड लॉट ऑफ मनी, तो सारा प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे के मदद से he was trying to save these people by paying money to the officials of Hitler. So एक इंसान को ऐसे ही, आई थिंक ही वाज शिंडलर ओनली, तो शूट करने के लिए कोशिश करते हैं, द गन डजंट फायर। फिर वो सोल्जर ऊपर फायर करता है, गोली चलती है, फिर उसको हेड पे एम करके शूट करते हैं, गन डजंट फायर। फिर ऊपर फायरिंग करते हैं, फिर शूट होता है। 3 बार दे ट्राइड, दे कुड नॉट शूट द पर्सन, बट व्हेन दे आर डूइंग ऑन द स्काई द गन इज फायरिंग। सो बाय द टाइम थर्ड टाइम हुआ, एक पीएम दौड़ते हुए आता है और लेटर देता है कि दिस पर्सन इज सपोज टू बी रिलीज्ड। तो एकदम इस तरीके से वो बच जाता है। बेसिकली कहने का मतलब है, जिसको हम असमीज में भी कहते हैं राखे हरी मारे कुने, मारे हरी राखे कुने। अगर हरी मतलब यहाँ पे कृष्ण की बात हो रही है, अगर कृष्ण बचाना चाहे तो कोई नहीं मार सकता, और कृष्ण मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता। सो हियर ऑल्सो द लॉ, यहाँ पे लॉ को हमने भगवान बोला। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कर्म। तो जिस कर्म, जिस नियम से पूरा ब्रह्मांड चलता है। अभी व्हाट इज दैट अगेन, क्यों है? थियोसॉफी का एक चीज हम आपको बताते हैं। वी हैव टाइम। थियोसॉफी में आता है कि व्हाई देयर इज लॉ ऑफ कर्म। जैसे आप समझिए, एक हम, ये जो हमारा बॉडी है, फर्स्ट डे एक जाइगोट था, एक बहुत ही, एक सेल था, जस्ट एक सेल, जो शुक्राणु और डिम्बाणु मिलके एक पहला सेल बनता है, जाइगोट, जाइगोट था। ओके, फिर उसके बाद सेल डिवाइड होके मल्टीप्लाई होते होते एक सेल से ये इतना बड़ा बॉडी बना। सिंपल भाषा में तो ये जो इतना बड़ा बॉडी बना, ये जो सेल ग्रोथ हुए, ये एक सर्टेन पैटर्न में, सर्टेन शेप में, सर्टेन स्ट्रक्चर में हुए। ये सुन, अगर ये ग्रोथ कैओटिक होता तो क्या शरीर बन जाता? आज भी कुछ लोगों में ये ग्रोथ कैओटिक होता है, जो बाई बर्थ देखेंगे उनके बॉडी में कुछ डिसफंक्शन है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। बाई बर्थ कुछ लोग हैंडीकैप पैदा होते हैं, गॉड फॉरबिड उनका पास्ट लाइफ कर्मा होगा, मे गॉड ब्लेस यूटिलाइज देयर पास्ट कर्मास, बट दिस इज हाउ थिंग्स आर। सो कर्म के हिसाब से हमारा शरीर शेप होता है। दिस इज व्हाट दिस एसोटेरिक टीचिंग मींस। सो ये जो सेल, एक सेल से टिश्यू बनना, टिश्यू से ऑर्गन बनना, ये जो प्रोसेस है, इसमें तीनों एनर्जी काम करती है। जैसे हर मैटर में इंटेलिजेंस इन्फ्यूज करते हैं ब्रह्मा, फिर उस मैटर को इकट्ठा करते हैं विष्णु। सपोजिंगली एक एटम में इंटेलिजेंस आ गई, देयर आर मेनी एटम्स, ऑल हैव इंटेलिजेंस। सेकेंड एनर्जी आता है विष्णु का। विष्णु का एनर्जी क्या होता है? अट्रैक्ट करता है।
सो अलग अलग एटम को अट्रैक्ट करके मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से फिर कंपोनेंट बनता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बनती हैं। दिस इज हाउ क्रिएशन हैपेंस। और जब सेल पुराना हो जाता है, वो मर जाता है, उसको वहां से रिमूव किया जाता है, उस जगह नया सेल लाया जाता है। दिस इज ब्रह्मा क्रिएशन। इन्फ्यूजिंग इंटेलिजेंस, attracting atom and creating the structure is Vishnu, and breaking down the old to create new is Shiva. इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये जो ग्रोथ है, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो, उसको मेक श्योर करने के लिए लॉ ऑफ कर्म। अभी हिंदुइज्म के हिसाब से कर्म के देवता है शनि। ओके, शनि का मतलब भी होता है शनि शनि, मतलब स्लोली स्लोली। सो हर चीज एक समय के अनुसार होता है। सो लॉ ऑफ कर्म के तीन सब लॉ है। पहला सब लॉ जो कहता है एज यू सो यू रीप, इसको लॉ ऑफ हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जो आप सीड प्लांट करेंगे वही फल आपको मिलेगा। एप्पल प्लांट करेंगे एप्पल मिलेगा, मैंगो प्लांट करेंगे मैंगो मिलेगा, राइस प्लांट करेंगे राइस मिलेगा। पहला लॉ, जो आप प्लांट करेंगे, आप गुस्सा देंगे आपको रिटर्न में गुस्सा मिलेगा, आप प्यार देंगे रिटर्न में प्यार मिलेगा, राइट। पहला लॉ एज यू सो यू रीप, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ हार्वेस्टिंग। दूसरा लॉ ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर मतलब ये एक एक एप्पल प्लांट करते हैं, सीड प्लांट करते हैं तो एक ही एप्पल नहीं मिलता, बहुत सारे एप्पल मिलते हैं। एक मैंगो प्लांट करते हैं तो एक ही मैंगो का फ्रूट नहीं मिलता, बहुत सारे मिलते हैं। तो इसी तरह आप एक इतना सा गुस्सा करेंगे तो आपको रिटर्न में इतना सारा मिलेगा, इतना सा प्यार किसी को देंगे तो रिटर्न में इतना सारा मिलेगा। सो इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। दूसरा लॉ। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ कर्म का सब लॉ, इसको बोलते हैं लैग टाइम, प्रिंसिपल ऑफ लैग टाइम। लैग टाइम का मतलब होता है हर सीड का जैसे एक हार्वेस्टिंग पीरियड होता है अलग, जैसे एप्पल का सीड प्लांट करके फ्रूट आने का जो टाइम है, मैंगो का वो टाइम अलग होगा, राइस का वो टाइम अलग होगा। इसी तरीके से हमारे हर एक्शन का लैग टाइम अलग अलग होता है। तो कई बार हमको लगता है कि अरे ये तो इतना गलत काम कर रहा है, दुनिया को लूट रहा है, फिर भी ये तो मजे कर रहा है, इसका तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको ऐसा लगता है। बट बेसिकली इट इज ओनली बिकॉज ही इज एंजॉइंग बाय डूइंग रॉन्ग डीड और रॉन्ग कर्मा और बैड कर्मा इज बेसिकली इनका पहले का गुड कर्मा का बैलेंस अभी भी चल रहा है। इसको हम बोलते हैं उसका पाप का घड़ा नहीं भरा। तो जिस दिन दैट इज अ लैग टाइम, वो लैग टाइम आएगा जरूर। कर्म, लॉ ऑफ कर्मा इज इनएविटेबल। लॉ ऑफ कर्मा को आप निगेट नहीं कर सकते, लेकिन आप पास्ट में अगर आपने कुछ गलतियां की हैं, आप उस गलतियों से सीख के फॉरगिवनेस मांग के आप उस कर्मा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो गॉड इज ऑल लविंग, इसीलिए बोलते हैं गॉड इज ऑल लविंग। गॉड हमेशा आपकी गलती, हमारी गलतियों के लिए हमको माफ करते हैं। अगर मैं रियलाइज करूं कि ओके मैंने पास्ट में कोई नेगेटिव कर्म किया है और आज भी मुझे वो हॉन्ट करता है, मुझे तकलीफ देता है और मुझे डर है कि ये लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो जाए, तो उसको निगेट करने का तरीका पहले तो आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे क्यों गलती, आपका मिस्टेक क्या है, आपका लेसन क्या है, उसको लर्न करिए। लेसन लर्निंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है, समडे वी कैन टॉक अबाउट इट सेपरेटली। देयर आर सर्टेन स्टेप्स। आज बहुत इंडाइजेशन हो जाएगा इतना कुछ अच्छा। Okay, so the moment we learn the lesson, the karma gets neutralized for us. इसलिए God is all loving बोलते हैं। उसको आप क्रिश्चियन में गॉड इज ऑल लविंग, ईश्वर प्रेम का रूप है, विष्णु इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लव अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। और इस्लाम में इसको बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो रहमानों का रहीम। प्रेम, रहीम मीन्स कंपैशन और लव। ओके, सो ये हर कल्चर में हम कहते हैं, हर रिलीजन में हम कहते हैं। बेसिकली कर्म, पास्ट कर्म न्यूट्रलाइज करने का तरीका है हमको जो मिस्टेक हम किए हैं उसको हमको बंद करना पड़ेगा।
अपनी गलतियों से हमको सीखना पड़ेगा, और दैट इज कॉल्ड लर्निंग द लेसन। लर्निंग द लेसन कैसे कर सकते हैं, इस पे हम कभी और बात करेंगे। पहला, दूसरा टेक्निक है फॉरगिवनेस। अतीत में अगर आपने कोई गलती की है, दूसरों से माफी मांगिए। जरूरी नहीं आप उनके पास जाके माफी मांगिए, आप यही बैठ के आंख बंद करके उस इंसान का चेहरा सामने लाके आप, लेकिन मांगने से पहले एक और लॉ ऑफ कर्म का एक और यूटिलाइज मास्टर बोलते हैं, पहले देना सीखिए, क्योंकि इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव। सो पहले क्या करेंगे, आपको जिसने दिल दुखाया हो, आपको जिसने तकलीफ दिया हो, आप उस इंसान को माफ करो इंटरनली। एक्सटर्नली जरूरी नहीं हर गलती की माफी दी जाए। इनर फॉरगिवनेस फॉर ऑल, एक्सटर्नल फॉरगिवनेस यू हैव टू सी केस टू केस बेसिस। आपको जस्टिस करना पड़ेगा इन केस ऑफ एक्सटर्नल फॉरगिवनेस। जस्ट बिकॉज आप फॉरगिविंग है डजंट मीन कि आप, एक आदमी आके बार बार आपको मार रहा है और आप उसको माफ करें। you have all the right, we have all the right to defend ourselves, और as well as वो पर्सन अगर सोसाइटी में chaos करता है, आज आप उसको नहीं रोकेंगे तो और लोगों को परेशान करेंगे। इसलिए आप उस पर जस्टिस करते हैं, उस पर कोई एक्शन लेते हैं, और वहाँ एक्शन एंगर या अंदर का कोई नेगेटिव इमोशन से मोटिवेटेड नहीं है, वहाँ एक्शन इज फॉर जस्टिस। ओके, दैट इज द रियल रोल ऑफ क्षत्रिय, आगे जाके कृष्ण भगवत गीता में क्या। दूसरा पहला टेक्निक लर्निंग द लेसन, दूसरा टेक्निक फॉरगिवनेस, तीसरा टेक्निक गोइंग फॉरवर्ड। जैसे आपको पता चला कि आपने भी गलतियां, जैसे आप दूसरों की गलतियां माफ करते हैं, आपको दिखाई देगा आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, फिर आप लोगों से माफी मांगते हैं। सो इस फॉरगिवनेस में आपके बहुत सारे कर्मा न्यूट्रलाइज हो जाए। थर्ड स्टेज, तीन टेक्निक में, पहला टेक्निक क्या कहा हमने कर्मा को न्यूट्रलाइज करने का, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट कर्मास। सो वन इज लर्निंग द लेसन, सेकंड इज फॉरगिवनेस, थर्ड इज प्रैक्टिसिंग मर्सी। गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आपने पता चला कि अतीत में आपके साथ लोगों ने गलतियां की, आपने भी लोगों के साथ गलतियां की है, तो आप ये भी मान के चलिए कि अभी भी लोग एक दिन में बदल नहीं जाएंगे, या आपको जो रियलाइजेशन हुआ सबको नहीं हुआ। सो लोग गलती करेंगे, तो आपको गलती के प्रति मर्सीफुल होना पड़ेगा। अगर लोग आकर वापस गलती करेंगे तो आपको वापस उनको माफ करना। तो जब तो मछुआरों का झगड़ा हो रहा था, एंड जीसस क्राइस्ट जाके बोलते हैं कि झगड़ा मत करो, अगर कोई तुम्हारे एक गाल में चाटा मारे तो दूसरा गाल भी दे दो। तो दैट वाज ही वाज ट्राइंग टू से, बिकॉज वो लोग खामखा लड़ रहे थे। तो एक पूछता है कि कितनी बार तक माफ करें, जीसस बोलते हैं 7 बार। बोले 7 बार में नहीं माना तो, बोले 777 बार। ओके, सो द मीनिंग इज बेसिकली जब तक हो सके तब तक। बीइंग मर्सीफुल मीन्स वी हैव टू कीप ऑन फॉरगिविंग पीपल, एंड दैट इज व्हाट इज फॉरगिवनेस। एक स्टेट ऑफ माइंड आपका हो जाता है कि आप ऑटोमेटिकली फॉरगिव करते हैं लोगों को, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। तो फॉरगिवनेस के भी 7 लेवल्स, 0 से लेके 7 तक। कभी फुर्सत मिलेगा तो विल टॉक अबाउट इट, एंड हाउ टू डू फॉरगिवनेस, उसका प्रोसेस, एक रिचुअल हम प्राणिक हीलिंग पे सिखाते हैं। सो वी कैन डू वन सेशन ऑन संडे, राइट। एंड ये 3 टेक्निक मास्टर बोलते हैं पास्ट कर्मा को न्यूट्रलाइज करने, और प्रेजेंट में आपको अच्छे कर्म करने हैं, सो दैट सही सीड प्लांट करना है। जो आपको चाहिए वो आप देना शुरू करें। आपको लाभ चाहिए लाभ, रेस्पेक्ट चाहिए रेस्पेक्ट, पैसा चाहिए पैसा दीजिए। Whatever you need in your life, you give it to other people. And as per law of karma, it will come back to you in many times. So, Master एक जगह इसलिए बोलते हैं, it is very difficult to predict the future, but it is easy to create future. And the way to create future is doing right action, planting the right seed. इस यही कर्म योगा का सेकेंड स्टेप है कि कर्म do the right action, but without attachment to the fruit. Okay. Yeah. So कर्म, अगर आप कर्म के लॉ को फॉलो करेंगे तो आपको लॉ ऑफ कर्मा बचाएगा। यही मतलब होता है धर्म राक्षती। माई राइटियसनेस
इज माई शील्ड। इसके अलावा बहुत सारे शील्ड हम यूज करते हैं, वो सब शील्ड काम नहीं आते, राइटियसनेस के ऊपर कुछ नहीं। इवन हम देखते हैं कृष्ण भी एट द एंड हाउ ही डाइज अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, याद होगी आई थिंक। ओके, वी हैव 6 मिनट, क्विकली मैं आपको स्टोरी बताऊं। जब लड़ाई खत्म होती है एंड पांडव विंस, गांधारी कारसेस, गांधारी कृष्ण को अभिशाप देती है कि जिस तरह मेरा पूरा वंश नाश हो गया है, उसी तरह तुम्हारा यादव कुल भी नाश होगा। एंड कृष्ण as he takes life so easily, so playfully, बोलते हैं कि मुझे स्वीकार है आपका ये अभिशाप। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। ऐसा पर्सनालिटी शायद ना कभी हुआ और ना कभी। इवन राम के लाइफ को हम हम ये बोलते हैं, चरित्र बोल, कैरेक्टर, एक फिक्स्ड प्रेडिक्टेबल वे में वो फंक्शन करते हैं। कृष्ण हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लाइफ को प्लेफुली लेते हैं, इसीलिए कृष्ण के लाइफ को हम लीला बोलते हैं। सो he teaches that to everyone, take life as a play. So कृष्ण उस कार्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, और स्टोरी में बाद में कहते हैं कि एक ये यादव कुल एक समय में बहुत पावरफुल होता है, पूरे पूरे अर्थ में दे बिकम डोमिनेटेड, बिकॉज कृष्ण जिन्होंने पूरे महाभारत को जिताया उनके पास है, बलराम है, तो दे बिकम वेरी पावरफुल। और यादव कुल में कुछ ऐसे यादव होते हैं, वो एक बार ऐसे मजाक मजाक में एक ऋषि के साथ मजाक करते हैं। एक यादव को, बेसिकली वो मेल होता है, उसको फीमेल रूप बना के पेट में तकिया उकिया डाल के एक ऋषि के पास लेके जाते हैं, बोलते हैं गुरुजी बताइए तो ये कितने महीने की प्रेग्नेंट है। गुरुजी को आता है गुस्सा, बोलते हैं कितने महीने की भी हो पता नहीं, बट इसके पेट में जो है इसी से तुम्हारा कुल नाश हो, ये कर्ज मिलता है। दे वर सरप्राइज, पेट में तो कुछ है नहीं, and but when they checked later on they found a iron bar, इतना बड़ा एक आयरन बार उसके पेट में मिला, और उनको श्राप याद आता है कि इस आयरन बार से पूरा यादव कुल नष्ट हो जाएगा, कैसे इसको डिस्कार्ड करें, कैसे इसको डिस्ट्रॉय करें। तो पूरे यादव के जो युवराज होते हैं, ग्रुप्स ऑफ देम, दे वेंट टू रिवर के साइड में जाते हैं, बड़े एक पत्थर में उस रॉड को घिसने लगे, घिसते 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 उसके छिलके छोटे छोटे टुकड़े पानी में गिरते जाते हैं, और पानी उसको बहा के ले जाते हैं। करते करते लास्ट में एक इतना सा एक पिन बचता है, खाली नेल, खाली एक नेल बचता है। ठीक है, इससे क्या होगा, वो नदी में फेंक देते। अभी ये जो छिलके हैं नदी में बह गए थे आयरन के, वो थोड़ा आगे जाके नदी के किनारे लग जाते हैं, और वहां पे एक ग्रास उगता है, और उस ग्रास के जो लीफ है बहुत शार्प होता है। स्टोरी सुनिए कैसे लॉ ऑफ कर्म को समझाने के लिए कैसे स्टोरी बनाई जाती है। स्टोरी इज बेसिकली टू एक्सप्लेन हाउ लॉ ऑफ कर्म। एंड वो इवन यादव कुल का दंश ऐसे नष्ट होगा, वो ययाति को भी अभिशाप मिला हुआ था। ययाति वाज द फर्स्ट फोर फादर ऑफ यादव कुल। सो यस, ग्रास उगते हैं, और ये जो छोटा सा नेल रह गया था वो कोई मछली खा देती। बहुत बड़ी सुनहरी मछली मछुआरा पकड़ता है और देखता है इतनी सुंदर मछली, ये तो राजा को गिफ्ट देना चाहिए, तो मछली लेके राजा दरबार में पहुंचा। और वो मछली जब काटते हैं तो मछली के पेट में वो नेल मिलता है। जो कुक था उसको उसने वो नेल अपने बच्चे को देता है, अपने बेटे को देता है, जो बेटे का आदत होता है धनुष बाण चलाना। ही वॉज अ शिकारी, हंटर। सो वो नेल से दिखता है बहुत अलग किस्म का धातु है, तो उसको काट पीट के वो तीर का हेड बना लेता है। एंड ही वेंट आउट, उसका स्टोरी गया। अभी दूसरा स्टोरी सुनिए, जो ग्रास उगा था, कुछ दिन बाद वैसे ही यादव वहां पे उस नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, और लोग मस्ती में मदिरा पी रहे हैं, नाच गाना चल रहा है। तो इसी बीच में उनके बीच में खेल खेल में थोड़ा, जैसे हम लोग खेल खेल में पानी फेंक देते हैं, बालू फेंक देते हैं, वैसे
somehow खेल खेल में वो लोग वो ग्रास को उठा लेते हैं जो तीखे धारीले ग्रास थे, and they start throwing to each other, and वो उतना poisonous था according to the story, all Yadav कुल dies. Okay, so this is how they are supposed to get extinguished, and they get extinguished. इधर वो जो तीर बनाया था कृष्ण, when he was very old, according to the story, वो 120 साल के कुछ थे जब वो उनकी डेथ हुई थी। वो ही वन में जाके वो आराम करते हैं, एक पैर ऊपर, ऐसे पैर के ऊपर पैर उठा के सोते हैं ना, कई सारे आपके कृष्ण के पोज दिखेंगे, when he is lying one leg putting, एक लेग के ऊपर दूसरा लेग, और ये पैर ऐसे हिला रहे हैं, ठीक है। और वो व्याध हंटर सोचता है कि ये हरिण का कान है, and he shoots with the arrow. Arrow जाके पैर में लगता है, but that arrow was very poisonous because that metal, remember, was very poisonous, and because of that Krishna dies. So this story says even Lord Krishna could not surpass the law of karma, since he was a medium to extinguish one entire core of clan. So his own clan was also destroyed, but he didn't care. उन्होंने उसका केयर नहीं किया। उन्होंने जो राइट एक्शन है धर्म की रक्षा के लिए जो करना सही लगा उनको, वो उन्होंने किया। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है इस कभी मैं सोचता हूँ। वो युद्ध में जाने से पहले बोले मैं हथियार नहीं उठा, लेकिन जब देखे भीष्म मर नहीं रहे हैं, सरेंडर कर नहीं रहे हैं और अहंकारी होते जा रहे हैं कि मुझे कोई नहीं मार सकता, he picks up the wheel of the chariot, बोले अभी इसी वक्त आपको कोई वरदान नहीं बचा सकता। That's the, no, कुछ भी कर सकते हैं वो राइटियसनेस के लिए। इसलिए तभी कृष्ण बोलते, एक जगह एग्जांपल देते हैं कि अगर धर्म एक ट्री है, पेड़ है, तो उसका रूट कंपैशन है, करुणा है, और उसके ब्रांचेस धार्मिक रिचुअल्स है, नॉलेज है, वेदास है, सब कुछ है। बट अगर आपको बचाना पड़े ट्री में से, आप ब्रांच को बचाएंगे कि रूट को बचाएंगे? आप डेफिनेटली रूट को बचाएंगे, राइट? सो रूट इज कंपैशन, रूट इज लव। तो कृष्ण वही टीचिंग देते हैं पूरे भगवत। Okay, I think we are done with the time today. I hope I could communicate what I wanted to. If you have any question, you can put in the chat box, the WhatsApp group. Next, हम लोग बात करेंगे body attachments और ये सब के ऊपर. Then we'll also, if there is time, we'll practice forgiveness. We'll understand more about forgiveness, how to utilize past karma. छठा चैप्टर है ध्यान योगा. It's again going to be very interesting. Okay. Yes, thank you so much. Let's close for the day. Please put your hands on heart. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to Lord Mahaguru's remaining, Grand Master Chakra, Holy Guru, Saints, Archangels, Holy Angels, इसका अभी तक कुछ वो नहीं है. thank you for your blessing, guidance, help. Thank you everyone for joining. See you next week. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. It was wonderful. एक काम करना, मीटिंग सेट करना, चलते हैं.